request Dr. Akhilesh Sharma, who is an Ayurvedic specialist who expertise in Panchkarma therapy. He is widely recognized for his outstanding contributions in the field of Ayurvedic medicines. He is also awarded with Dhanvantri Award, the Chikitsa Shiromani Award for his outstanding contribution to Ayurveda. And we are really grateful that he is associated with Ayushman Bharat. Please invite him on the podium, everyone. Thank you so much, sir. So as you all know, we have to wind up by 5, so we'd like to request just 5-10 minutes for everyone, all the speakers. Thank you so much. Thank you very much, honorable guests of the dais, and all of you. It's a matter of great privilege for me to be part of this August gathering. Before I start my presentation, I would like to chant one small Sanskrit mantra, a powerful healing mantra. मंत्र कुछ इस प्रकार से है, सभी लोग ध्यान देंगे, अपनी आंखें बंद करके लंबा सांस लें। ओम भेषजं भेषजं महाभेषजं राजा समो गते भेषजं भेषजं महाभेषजं राजा समुद्रते स्वाहा। इसका शाब्दिक अर्थ कुछ इस तरह का है कि all the ruler of the rulers, the healer of the healers, the master of the masters, you have to prevail, exist forever, forever, and forever. And then we say samudgate swaha, which means anything in the form of negativity, negativity of thoughts or emotions, negativity of bacteria and pathogens, negativity within me at microcosmos level and negativity around me at macrocosmos level, all of that has to be offered to the holy fire to convert it into positivity. This is the literal meaning of this powerful chanting mantra. तो मैंने सोचा कुछ आप लेकर जाएं साथ में, तो this would be one very good powerful mantra which we can chant in all situations to ease out all processes and healing processes occurring within the bodies. Recent investigations done on this at one sansthan about which I would not narrate their name, but they say even the bacteria and pathogens stopped multiplying under microscopic examination. That is the power of the mantra. मेरा टॉपिक आज था पेन मैनेजमेंट। मैंने टाइटल्स में पढ़ा, तो आज सीधे मैं अपने विषय पर आता हूँ। पेन मैनेजमेंट की बात करूँगा कि अगर आप आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव देखें पेन मैनेजमेंट का, तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि all those medicines which we use are absolutely safe and effective with absolutely no side effect. जैसे मॉडर्न मेडिसिन नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यूज करते हैं पेन मैनेजमेंट में फॉर एनी काइंड ऑफ डिजीजेस, दे हैव हेपेटोटॉक्सिक एक्टिविटीज, सम ऑफ देम आर कार्सिनोजेनिक इन एक्सट्रीम, है ना, अल्सरेशन हो जाता है। तो उस तरह से मैं बड़ा ओवरव्यू आपको एक छोटा सा कुछ ग्लिम्स दूंगा। आयुर्वेद में एक प्लांट है जिस इज कॉल्ड गुगुल। आपने गूगल शब्द तो सबने पढ़ा है, पर अनफॉर्चुनेटली GOOGLE जो गूगल है, उससे भी हजारों साल पहले एक वर्ड था गुगुलू, which is GUGULLU, ऐसे लिख सकते हैं आप अंग्रेजी में। तो गुगुलू was a resin, gum resin from the plants, ठीक है, which has got very strong anti-inflammatory and analgesic activities. कुछ साल पहले मैं, क्योंकि विदेशों में काम करता हूँ आयुर्वेद में, एक बार मुझे मौका मिला, कनाडा के कुछ बर्फीले जंगलों से निकला
तो देखा कि एक क्षैतिज से कुछ लोग कुछ एक रॉक को तोड़ के फेंक रहे थे सी नदी की तरफ। When I had a closer look and I understood what it was, तो मैंने कहा, oh my God, ये गूगल का इतना बड़ा जो एक्सीलरेट ट्री से निकल के खड़ा हो गया था। मैंने कहा ये डाबर जैसी है किसी बड़ी कंपनी को अगर भारत को आयरन में मिल जाता ना, तो उसमें से हम कम से कम 5 करोड़ रुपए बनाते। ठीक है, विडंबना देखिए आयुर्वेद की इतनी महानता कि जिस प्रदेश में ठंडे प्रदेशों में भी अगर पेन के लिए वहां एंटी आर्थराइटिक मेडिसिन वहीं पैदा होती है, मदर नेचर ने हमें दी है, लेकिन वी आर सफरिंग फ्रॉम डिजीज कॉल्ड इग्नोरेंस, अनविज्ञता की वजह से। वो कम से कम 5 करोड़ का वो जो एक स्लॉट था वो नदी में मेरे सामने फिक गया और मुझे बड़ा दुख हुआ इस बात देख करके। तो टॉकिंग अबाउट गुगुलू विच इज अ ड्रग ऑफ चॉइस, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, आमवाद संधिवाद में हम यूज करते हैं। गुगुल की आयुर्वेद में बहुत सारी प्रिपरेशन बनती है, जैसे एक है सिंहनाथ गुगुल, योगराज गुगुल, महायोगराज गुगुल, इसी तरह त्रिफला गुगुल, पुनर्नवा गुगुल। डिफरेंट गुगुल की डिफरेंट एप्लीकेशंस है। कैन यू इमेजिन, आपको अगर कमर में दर्द है तो हम आप क्या देंगे, त्रयोदशांग गुगुल। ये वो दवा है जो मैंने शाहरुख खान को भी खिलाई है। त्रयोदशांग गुगुल फॉर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, अगर आपको वहां पेन है तो भी आप ड्रग ऑफ चॉइस वुड बी त्रयोदशांग गुगुल। अगर आपको बॉडी पेन एक्स है, लेथार्जिक बॉडी है, फिर भी तो आपने त्रिफला गुगुल का सेवन करना है। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर है काफी और वाटर रिटेंशन है तो आपको पुनर्नवादी गुगुल यूज करना है। तो इसी तरह से अगर आपको स्किन डिजीजेस है और इन्फ्लेमेटरी प्रोसीजर बॉडी पर हो रहा है तो आपको कैशियोर गुगुल यूज करना है। सो इसी तरह से वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन व्हिच हैज अनफॉर्चूनेटली नेवर बीन प्रोपेगेटेड एंड मार्केटेड द वे इट शुड हैव बीन। तो पेन मैनेजमेंट में गुगुलू की इस तरह की बहुत सारी अनएंडिंग रेंज है। गाउट है जैसे वातरक्त होता है, उसको आयुर्वेद में बोलते हैं, उसमें हम यूज करते हैं पंचतिक्त गुगुलू घृत, घृत गुगुलू। घृत गुगुलू और गुगुलू घृत दो अलग अलग चीजें हैं। वन इज अ घी, अनदर इज एन एक्सुडेट ऑफ द गुगुल रेजिन which is made as a compound formulation used for gouty arthritis. But lack of information की वजह से अच्छे rheumatologist के बारे को भी आयुर्वेद का ये पक्ष जो हमने पढ़ा दिया ना गुगुल के टॉपिक्स, हम rheumatology मेडिसिन में एक क्रांति ले आएंगे। इसीलिए आयुष्मान भारत जैसे प्रोजेक्ट्स को एलोपैथी के साथ सामंजस्य में स्थापित करना खाली ये नहीं है कि एक ही बिल्डिंग के अंदर 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स खोल दिए और अपनी डफली दोनों बजा रहे हैं कि यहाँ से ठीक नहीं हो तो उधर भेज दिए। There has to be an integration where we have to teach each other, है ना? इंटीग्रेशन तब होगा सच्चे में। तो इस बात का मैं सभी माननीय जजों का ध्यान चाहूंगा कि इस विषय पर हमें बात करने की जरूरत है। कैशो जैसे अच्छा, उसी तरह से आयुर्वेद का जो रिहैबिलिटेशन पार्ट है जिसको पंचकर्म चिकित्सा भी कहते हैं, उसमें डॉक्टर हमारे एक्सपर्ट पंचकर्मा डॉक्टर साहब बैठे हैं और इससे पहले भी पिछले सेशंस में आई वाज नॉट देयर अनफॉर्चूनेटली। पंचकर्म चिकित्सा जो है इट इज हाफ ऑफ द ट्रीटमेंट डन। Majority of the chronic lifestyle disorders and autoimmune disorders can be very effectively can be dealt with पंचकर्म चिकित्सा। जैसे कुछ चीजों में हम क्या करते हैं, जैसे एक ट्रीटमेंट बोलते हैं हम वस्ती। वस्ती में क्या होता है, कटी वस्ती एक ट्रीटमेंट है। फिर कटी वस्ती में क्या होता है, सपोज दिस इज योर लंबर स्पाइन, आपको L4-5 एरिया में पेन है, कंप्रेशन है, एंट्रैपमेंट है नर्व का, तब भी यू मेक एक उड़द की दाल के आटे का घेरा उसके आसपास बनाते हैं 2 इंच विड्थ वाला सर्कुलर which goes with the curls and curves of the body and doesn't let the oil peep through, लीकेज नहीं होती उससे, ठीक है, और उसमें गरम तेल भर देते हैं। साइंटिफिकली उसको जब हमने इवैल्यूएट किया, क्योंकि पंचकर्म चिकित्सा में बहुत सालों से जुड़ा रहा है, वाज अ फिजिशियन एट मूलचंद हॉस्पिटल इन द बिगिनिंग डेज ऑफ माय करियर, तो वो क्या करता है 3 इंचेस डीप तक जा करके पेन और इन्फ्लेमेशन को खींच लेता है। It is far more effective than shortwave diathermy. लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिजियोथेरेपी में कराने हम सब लोग चले जाते हैं, वो इंश्योरेंस से भी कवर्ड होता है, कटी बस्ती के बारे में किसी ने सुना नहीं है। यही कटी बस्ती से हमने हजारों नहीं लाखों लोगों पर उसका एक बड़ा इफेक्टिव डेटाबेस अवेलेबल है।
तो कटिबस्ती इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर क्रॉनिक लो बैक कंडीशंस। ऐसे एक होता है हृदय मस्ती, वेयर ऑन द हार्ट एरिया यू मेक a boundary of the same आटा और उसमें ऑयल भरते हैं, ठीक है। और जितने भी वाद शामक ऑयल है ना, if you look into the broad range, जैसे कॉमन पेनफुल कंडीशंस के लिए हम तिल का तेल जो है इट्स अ ड्रग ऑफ चॉइस इन आयुर्वेदा। आप सभी को अगर आपको याद हो महाभारत के काल में भी मल्ल युद्धों में भी तेलों का प्रयोग होता था फॉर मसाज। जब वेस्टर्न सिविलाइजेशन में इन चीजों के बारे में कहीं कोई खबर नहीं थी। तो ऑयल का मेडिसिनल इफेक्ट क्या है? इफ यू लुक इनटू सेसमी ऑयल, तिल का तेल जिसको बोलते हैं, तिल के तेल में एक होता है सेसमी और सेलेनियम। सेलेनियम इज अ टॉनिक फॉर द नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसलिए आप किसी भी वात संबंधी बीमारी से, न्यूरोजेनिक कंडीशन से पीड़ित हैं, चाहे वो पार्किंसनिज्म हो या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, आर्थराइटिस हो, इवन डायबिटीज हो, आप डू द मसाज विद सेसमी ऑयल जिसमें सेलेनियम है, जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन है, मैंगनीज है, सल्फर है। ऑल दीज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यू ईट थ्रू द स्किन। तो टाइम क्योंकि कम है, मैं बड़ी क्विकली सम अप करूंगा कि देखिए अगर आपको पेन मैनेजमेंट घर में ही करना है ना, तो डेली क्या करें, सुबह जब आप नहाते हैं साबुन लगाया, यू वॉश योर बॉडी, योर पोर्स गॉट ओपनड अप, नाउ यू टेक ए बॉटल ऑफ सेसमी ऑयल जो कि बाथरूम में आपके साथ होनी चाहिए। आधा चम्मच हथेली पे डालिए, ऐसे रब कीजिए ताकि वो इक्वली स्प्रेड हो जाए। देन यू ऐसे करके आपने पहले टांगों पर लगाना है, तलवों में लगाना है, पूरे टांगों पर लगा के देन यू रब इट। पहले टैप किया ताकि स्प्रेड हो जाए, फिर रब किया। हाफ टी स्पून फॉर योर लेग्स, सेकंड हाफ टी स्पून ऑन द चेस्ट, ऑन द बैक, ऑन द आर्म्स, एंड देन यू रब इट। थर्ड हाफ टी स्पून फिर लेना है, सर में लगाना है, फेस पर, कान के पीछे, कान के अंदर, नाक के अंदर, गले पर, शोल्डर्स पर। 3 आधे चम्मचों के अंदर आपकी पूरी बॉडी कोटेड हो गई। Doing this massage is taking care of your body pains and aches any type, muscular हो या bony pain. Especially winters में it acts like an extra inner thermal wear you are wearing on the body. और एक मालिश की एप्लीकेशन 2 किलोमीटर की वॉक के बराबर हो जाती है फिजियोलॉजिकली। ये डॉक्यूमेंटेड है सर। दुख ये होता है कि डॉक्यूमेंट हिंदुस्तान में नहीं और कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट स्वीडन में उसको अपना पेटेंट करा लेता है उसकी एफिकेसी के ऊपर, क्योंकि हम गधे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो पेन मैनेजमेंट में तिल के तेल का बहुत इफेक्टिव रोल है, जो आपको न केवल दर्द और वेदना को शांत करता है बल्कि आपकी मानसिक और आत्मिक स्थिति को भी बल देता है। क्योंकि सेलेनियम जो है वो टॉनिक है फॉर द नर्वस सिस्टम, एंड स्किन बीइंग द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, नर्वस सिस्टम लिव्स हियर। दैट्स व्हाई द बॉडी एब्सॉर्ब्स द ऑयल थ्रू द स्किन and it creates more flexibility and elasticity in the nerves also. तो इसलिए सारी वातज बीमारियों के लिए, चाहे वो मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो, पार्किंसनिज्म हो, इस तरह के डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, इन सब में तेलों का विधान है आयुर्वेद में प्रयोग करने का। पंचकर्म चिकित्सा में हम 400 प्रकार के तेल यूज करते हैं। प्राइमरली बेस ऑयल क्या होता है? कोकोनट ऑयल होता है या तिल का तेल होता है ना। तो इन तेलों में डिफरेंट जड़ी बूटियां मिलाकर के हम 400 तरह के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो आमतौर पर मिलने वाले तेलों में, जैसे अभी कल एक रेडियो पर मैं इंटरव्यू दे रहा था, तो मैंने क्या कहा कि होली के टिप्स उन्होंने मांगे। तो मैंने क्या बोला, होली का पहला टिप तो ये है, होली वाले दिन घर से निकलने से पहले स्किन एलर्जीज और रैशेज से बचने के लिए और हेयर केयर के लिए आपको क्या करना है? पहले तेल लगाना है सर में, उसके बाद पूरी बॉडी पर तेल लगाना है, ठीक है। Because when you will wash your scalp afterwards, तो वो एक प्रोटेक्टिव लेयर उसके साथ सारा कलर को ड्रॉ कर लेता है। ये सेलुलर लेवल फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी भी बढ़ाता है। 1 application of sesame oil is equal to 2 kilometers of walk। अगर 2 किलोमीटर के वॉक के बराबर आ गया तो आपको कोलेस्ट्रॉल भी घटा रहा है, वो आपको अर्थराइटिस में भी लाभ कर रहा है, वो आपका ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी में बढ़ा रहा है, वो ब्लड फ्लो बढ़ा रहा है, वो प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक भी कर रहा है, ओबेसिटी को भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल एप्लीकेशन अभी हम सिर्फ तिल के तेल पर बोल रहे हैं। आप चाहें तो मैं 2 घंटे सिर्फ तिल के तेल पर बोल सकता हूं। और तो बॉटम लाइन में इट्स एन एंडलेस नॉलेज, ओशन ऑफ प्योर नॉलेज, ठीक है। तो तेलों में जैसे तिल का तेल एक कहा, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जो बैक्टीरियोसाइडल और वायरोसाइडल भी है,
आप यकीन मानेंगे, कोरोना काल में हमने एक प्रयोग किया, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आयुष काढ़े में उसमें आई हैड अ की रोल टू प्ले टू इन्वेंट दैट। आयुष काढ़ा जो उसको कंसेप्चुअलाइज करने में मेरा रोल था। एक मैंने काम किया अमेरिका में, जहां लोगों को नहीं मिलता था, पता है हमने क्या किया? तिल का तेल, लोगों को नुस्खा लिख लीजिए, राव सर को भी बता रहा हूं कि 50 ml तिल का तेल लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल लीजिए और उसको हल्की आंच पे पका लीजिए, ठीक है। नाउ यू स्टार्ट यूजिंग दिस ऑयल एज नेजल ड्रॉप्स। नाक में डालने के लिए आपने तेल घर में बना लिया है, 4-4 बूंदे दोनों नॉस्ट्रिल्स में डालना है। इससे बढ़िया फेस मास्क या इससे बढ़िया वायरोसाइडल कोई पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि नेजल एंट्री होती थी ना वायरस की। जब आपने नेजल कैंसर को ब्लॉक कर दिया विद अ स्ट्रॉन्ग बैक्टीरियोसाइडल एंड बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट कॉल्ड हल्दी, जो आपके किचन में पड़ा है? हम पूरे विश्व में इलाज ढूंढ रहे थे, वो आपके घर में पड़ा है यार, किचन में। इट इज दैट डैम सिंपल। तो अमेरिका में हमने क्रांति ला दी इसके माध्यम से। मैंने कम से कम 250 वेबिनार्स किए कोरोना काल के भीषण टाइम के अंदर, और सबको कहा फॉर गॉड सेक एक हिंदुस्तानी तिल के तेल और हल्दी का फॉर्मूला सीख ले, और वो अपने 10 और अमेरिकन को जाके बताना है आपने, ताकि वो भी आपको दुआएं दें और याद रखें और कहें कि यस योर सिस्टम वर्क्स। दिस वाज द आइडिया। सो इट ग्रू व्हाट ए रिवॉल्यूशन। तो मुझे मालूम है समय करने तो कहेंगे, मैं सब कर दूंगा। अच्छा ठीक है। तो देखिए तेल तो बता दिया, तिल का तेल बता दिया आपको, एरंड का तेल यूज कर सकते हैं। नर्व्स को स्ट्रेंथन करने के लिए एकांग वीर रस एक दवा है, जैसा नाम है ना एकांग वीर रस। ये रस औषधि है हमारे हजारों साल पुरानी ग्रंथों में से। एक का मतलब वन, अंग मतलब एक सिंगल अंग। सपोज आपको लोकलाइज पेन है इन दिस एरिया, जो नर्व कंप्रेशन से भी है या मस्कुलर स्वेलिंग में भी है, उसमें नर्व को स्ट्रेंथन करने के लिए एकांग वीर रस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। एनी काइंड ऑफ न्यूरैल्जिया, पैरालिसिस, यू कैन गिव इट सेफली एंड इफेक्टिवली। बहुत इफेक्टिव दवा है, किसी को पता नहीं है, ठीक है। तो बस बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन समय क्योंकि है नहीं इतना। कटिबस्ती के अलावा शिरोबस्ती आप करा सकते हैं फॉर माइग्रेन हेडेक्स, क्लस्टर हेडेक्स, फॉर ब्रेन क्लॉट्स, ट्यूमर्स आल्सो, इवन कैंसरस ट्यूमर्स में ओरल मेडिसिन के साथ साथ आप शिरोबस्ती कराते हैं। यू मेक द पेशेंट बार्ड, टेक देयर हेड और लेदर सिलिंड्रिकल कैप सर के ऊपर बना के 1.5-2 लीटर तेल उनके सर पे होल्ड कराते हैं, ठीक है। गर्म तेल ठंडा निकालते रहते हैं, पेट से गर्म डालते रहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड शिरोबस्ती। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ये सारी चीजें एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकती हैं। आप सभी जो स्टारवॉट बैठे हैं डिफरेंट फील्ड्स के, स्पेशलिटीज के, काइंडली वी शुड क्रिएट काइंड ऑफ इंटीग्रेटिव कोर्सेज सो दैट वी कैन इंटरमिंगल एंड एक्सचेंज द प्रोग्राम्स। इसी तरह के आयुर्वेद में बहुत तरह के लेप हैं, जैसे दशांग लेप है और अश्वगंधादि से हम लोग लेप बनाते हैं। अश्वगंधा अपने आप में जो हम मानते हैं ना स्ट्रेस बस्टर है, वो एंटी इंफ्लेमेटरी भी, एंटी आर्थराइटिक मेडिसिन है, व्हिच डजंट गिव यू एनी डैमेज टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फ्लोरा आल्सो। दूध में मिला के उसका सेवन कर सकते हैं, या दूध और हल्दी का सेवन कुछ लोगों को पता है हड्डियां जोड़ने के लिए काम आता है। नहीं, इट इज अ वेरी गुड पेन किलर आल्सो। सो 1 glass of cow's whole milk with half teaspoon of haldi boiled 3 times, उसको 3 बार उबालिए तो उसको पीजिए, उससे उसका पार्टिकल साइज छोटा हो जाता है। It becomes chain of polypeptides and it assimilates into the system very well. तो बस इसके साथ खत्म करता हूँ। और भी चीजें हैं, कभी और कभी बर्बाद जाते इससे हार जाते अपने देशी वैद्यवर, जिस रोग से हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से थे दूर देशों के नरपति हमको बुलाकर मानते। इतिहास साक्षी है, हमें सब थे जगत गुरु।